بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کمر توڑ مہنگائی میں عوام کے لیے نئی آزمائش۔ وفاق کا بجلی کا یونٹ 9 روپے مہنگا کرنے کا پلان، بجلی صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ مارکیٹ آپریشن کے نام پر فیس عائد کی جائے گی، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو درخواست دے دی۔ عوام کی قسمت کا فیصلہ 23 دسمبر کو ہوگا۔ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ وفاقی حکومت نے بجلی کے صارفین پر اربوں روپے وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مارکیٹ آپریشن فیس قیمت میں 9 روپے فی یونٹ کے حساب سے درخواست دائر کر دی۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ آپریشن فیس کو بجلی کے ٹیرف کی مد میں وصول کیا جاتا ہے۔ ٹیرف کی بنیاد پر مذکورہ فیس صارفین سے بلوں کی مد میں وصول کی جائے گی۔ نیپرا سے منظوری ملنے کی صورت میں ڈسکوز فیس ادائیگی کرنے کی پابند ہوگی۔ نیپرا نے سی پی پی اے کی دائر ہونے والی درخواست پر سماعت مقرر کر دی۔ درخواست پر نیپرا نے 23 دسمبر کو سماعت مقرر کی ہے۔ اب یہاں پر بات کریں برائلر مرغی کی اونچی پرواز۔ ایک دن میں گوشت 22 روپے کلو تک مہنگا، قیمت 519 روپے کلو تک جا پہنچی۔ 3 دن میں قیمت میں 44 روپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے۔ سبزیوں کے سرکاری نرخوں پر بھی عمل درآمد خواب بن کر رہ گیا، مارکیٹ میں سبزیاں منمانی قیمتوں پر فروخت۔ برائلر مرغی بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ایک دن میں گوشت 22 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا۔ 1 کلو برائلر گوشت کی قیمت 500 سے بھی تجاوز کر گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت 519 روپے کلو تک جا پہنچی۔ پیر سے بدھ تک برائلر گوشت کی قیمت میں 44 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ زندہ برائلر فارم ریٹ 330، تھوک 344، پرچون قیمت 358 روپے رہی۔ انڈے فارمی 2 روپے اضافے سے 361 روپے درجن ہو گئے۔ دوسری جانب شہر میں سبزیاں اور پھل بھی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 90 روپے جبکہ مارکیٹ میں 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 65 روپے، مارکیٹ میں 90 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ادرک سرکاری قیمت 325، مارکیٹ میں 450 روپے کلو۔ بینگن سرکاری قیمت 60 روپے، مارکیٹ میں 90 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے سبزیوں کی فروخت سرکاری نرخوں کے مطابق کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور فضائی آلودگی میں پھر ٹاپ پر، باغوں کے شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 368 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایات۔ شہر میں خشک سردی جاری، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کا درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ حکومتی اقدامات بے سود ہو گئے، لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 239 ریکارڈ کیا گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن اور گرد و نواح میں شہر کا سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان انجینئرنگ سروسز 291، شالیمار ٹاؤن 260، راوی روڈ 232، ڈی ایچ اے 202، عسکری 10 میں شرح آلودگی 191 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ چند روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ماہرین نے شہریوں کو خشک موسم اور فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی 10 روزہ ملگیر ہڑتال ختم، اب ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ ملے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا روٹ پرمٹ 2 سال کا ہوگا۔ ٹرانسپورٹرز پر درج مقدمات واپس۔ مزدہ کا 15,000 کا چلان نہیں ہوگا، 38 فٹ لمبی گاڑیوں کی اجازت بھی بحال۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اہم مطالبات مان لیے، بلال اکبر خان کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ مل گیا، پبلک ٹرانسپورٹ کا روٹ پرمٹ 2 سال کا ہوگا، مزدہ گاڑیوں کو 15,000 کا چلان نہیں کیا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ٹرانسپورٹرز کے اہم مطالبات مان لیے، مزید معاملات کے لیے نئی کمیٹی بنا دی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ڈرائیورز پر درج مقدمات واپس لیے جائیں گے، آئندہ بیجا FIR سے گریز کیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹ پرمٹ کی مدت 1 سے بڑھا کر 2 سال کر دی گئی۔ 38 فٹ لمبائی کی حامل مزدہ گاڑیوں کی اجازت بحال کر دی گئی۔ ٹرانسپورٹ اڈوں کی فوری طور پر ڈیولپمنٹ ہوگی، لاری اڈا بادامی باغ میں وگز سینٹر بنایا جائے گا۔ مذاکرات میں مرکزی صدر ملک ندیم حسین، چیئرمین الائنس گروپ عصمت اللہ نیازی، میاں خان بلوچ، حاجی خالد، عرفان خان نیازی، ملک رمضان شریک ہوئے۔ حاجی تنویر، مزدہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران محمد نبیل، حاجی شیر علی بھی اجلاس میں شامل ہوئے۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین حاجی محمد اکرم ذکی، مرکزی صدر حاجی ملک ندیم حسین، صدر ورکرز فیڈریشن میاں خان بلوچ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس، مختلف اضلاع کے کمشنرز کی ناقص کارکردگی پر سرزنش، قبضہ کیسز پہ ADCR اور ACs کو مزید بااختیار بنانے کا حکم۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اچرا بازار کی تزئین و آرائش کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकामी पर अफसरान का कड़ा एहतसाब होगा। तबादले, बासपुर्स और सख्त वार्निंग्स दी जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अफसरान का किबला दुरुस्त करने का दो टोक फैसला कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने खुले मैन हॉल्स, कुत्ते के काटने के वाकयात, खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। वजीर आला ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की। इजलास में वजीर आला ने मुख्तलिफ अजला में कमिश्नर्स की नाकिस कारकर्दगी का सख्त नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान की कारकर्दगी को KPIs की बुनियाद पर जांचने का हुक्म दिया। वजीर आला ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 3607 कब्जा केसेस के फौरी फैसलों और कब्जे वागुजार कराने पर इंतजामिया को शाबाश दी। पंजाब के सरकारी महकमे भी शिकंजे में आ गए। कड़ी निगरानी और छापों के लिए फोर्स बनाने का फैसला। इंस्पेक्शन टीमों के हमरा पुलिस फोर्स भी तैनात होगी। जबकि टीम सरकारी दफातर में अचानक छापे, रिकॉर्ड और हाजिरी चेक करेगी। CMIT के मेंबरान को साउथ नॉर्थ पंजाब में दौरों का हुक्म दिया गया। सरकारी महकमे भी शिकंजे में आएंगे। पंजाब में पहली बार सरकारी महकमों की कड़ी निगरानी होगी। वजीर आला ने चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के साथ खुसूसी फोर्स बनाने की मंजूरी दे दी। CMIT की टीमें सुबह भर में सरकारी दफातर के अचानक दौरे करेंगी। इंस्पेक्शन टीमें हुकूमती टास्क और जिले इंतजामिया और पैरा फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेंगी। जराये के मुताबिक इंस्पेक्शन टीमों के हमरा पुलिस फोर्स भी तैनात होगी ताकि कार्रवाई मुअस्सर बनाई जा सके। टीमें मुआयना रिपोर्ट्स उसी रोज वजीर आला ऑफिस को इरसाल करेंगी। हंगामी इंस्पेक्शन के लिए नई गाड़ियां खरीदने और फोर्स के लिए अलग यूनिफॉर्म मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया है। सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग से बदउनवानी, गफलत और नाअहली के खिलाफ फौरी एक्शन मुमकिन होगा। PND बोर्ड का इजलास, 16 अरब के फंड्स मंजूर। मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स के कयाम के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए की मंजूरी। 43 अरब के प्लस मंसूबे को फाइनल मंजूरी के लिए CDWP को भेजने की मंजूरी। उधर नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे के जारी तमाम फंड्स खर्च हो गए। 2 अरब 45 करोड़ में से सिर्फ 41 करोड़ का अजरा किया गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 16 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। 43 अरब का प्लस मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए CDWP को भेजने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स के कयाम फेज 2 के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी हाउस के कयाम के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए। इजलास में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस को मजबूत बनाने के लिए मार्केट फैसिलिटेशन सेंटर्स के कयाम से मुतालिक पोजीशन पेपर की भी मंजूरी दी गई। नीला गुंबद जेर जमीन पार्किंग प्लाजे के तमाम जारी शुदा फंड्स इस्तेमाल कर लिए गए। टीपा ने वार्ड सिटी अथॉरिटी से मजीद 2 अरब से जायद फंड्स के इजरा की इस्तदा कर दी। टीपा ने महज चंद दिनों में ही तमाम इजरा शुदा फंड्स इस्तेमाल कर लिए हैं। तेज तामीराती प्लानिंग और फास्ट वर्किंग से मंसूबा तेजी से शुरू किया और फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। टीपा ने वार्ड सिटी अथॉरिटी को बाकी तमाम फंड्स के इजरा का मरासला लिख दिया है। टीपा ने मंसूबे की तकमील के लिए रवा माली साल में मुकम्मल फंड्स के इजरा की इस्तदा की है। हुकूमत का डिजिटल पंजाब विजन, फ्री वाईफाई सर्विस के दायरा में तोसी। 41 सरकारी कॉलेजेस में इंटरनेट सर्विस फराहम। कॉलेजेस में पिंक बटन सहूलत भी मौजूद। उधर बस स्टॉप्स पर मुफ्त इंटरनेट की फ्राहमी मुमकिन ना हुई। पायलट प्रोजेक्ट की नाकामी से मंसूबे पर सवालिया निशान। डिजिटल पंजाब विजन के तहत फ्री वाईफाई सर्विस के दायरा में मजीद तोसी कर दी गई। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने लाहौर के 41 सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में वाईफाई इंटरनेट सर्विस फराहम कर दी। हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद के लिए 41 कॉलेजेस में पिंक बटन सहूलत भी मौजूद है। CM फ्री वाईफाई से तालिबात के लिए फौरी और तेज इंटरनेट सहूलत मुयसर होगी। फ्री वाईफाई के जरिए तालिबात को ऑनलाइन लेक्चर्स, रिसर्च, असाइनमेंट्स में मदद मिल सकेगी। फ्री वाईफाई से तालिबात घर से बाहर भी ऑनलाइन क्लासेस और स्मार्ट लर्निंग जारी रख सकेंगी। लाहौर के 560 मुख्तलिफ अहम मकामात पर CM फ्री वाईफाई सर्विस पहले ही मौजूद है। दूसरी जानिब बस स्टॉप्स पर मुफ्त इंटरनेट की फराहमी का दावा पूरा ना हो सका। एम्पावर हर मुहिम के तहत बस स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाना था। इंटरनेट की सहूलत पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने मुहैया करनी थी। हुकाम ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट 10 बस स्टॉप्स पर वाईफाई की फराहमी का दावा किया था। साफ पानी की फराहमी के लिए एक और तजुर्बा। वासा और कंपनीज के पानी की जांच पड़ताल होगी। यूनियन काउंसिल की सतह पर पानी की मॉनिटरिंग होगी।
हुकूमत का वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री अपग्रेड करने का फैसला, 11 करोड़ का बजट भी मंजूर। वासा और ज़िला इंतजामिया पानी के नमूने टेस्ट जमा कराएगी। लाहौर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक और तजुर्बा। हुकूमत पंजाब ने सूबे की वाहिद सरकारी वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। मंसूबे के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। महकमा सेहत के मातहत कायम इस लेबॉर्ट्री में जदीद सिस्टम्स नस्ब किए जाएंगे, जिनके जरिए वासा, जिला इंतजामिया और साफ पानी फराहम करने वाली निजी कंपनियों से हासिल किए गए पानी के नमूनों की जामे जांच की जाएगी। साफ पानी कंपनियों के टेस्ट भी असरे नौ किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक अपग्रेडेशन के बाद पानी में मौजूद कीमियाई और जरासीमी आलूदगी की फौरी निशानदही मुमकिन हो सकेगी, जिससे बरवक्त इस्लाही इकदामात किए जा सकेंगे। मंसूबे के तहत लाहौर भर की यूनियन काउंसिल्स में पानी के मयार की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और लेबॉर्ट्री की तैयार करदा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई की सिफारिशात दी जाएंगी। 3 बड़े बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तेज तरीन इमिग्रेशन मंसूबे ई गेट्स में अहम पेशरफ्त हो गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए ई गेट नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि ई गेट्स FIA डिपार्चर और अराइवल काउंटर्स पर नस्ब होंगे। 3 बड़े बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तेज तरीन इमिग्रेशन मंसूबे ई गेट्स में अहम पेशरफ्त हो गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया। अगले मरहले में लाहौर एयरपोर्ट पर मंसूबे के लिए काम किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि ई गेट्स FIA डिपार्चर और अराइवल काउंटर्स पर नस्ब होंगे। ई गेट्स मंसूबा पर FIA एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और नादरा मिलकर काम कर रहे हैं। ई गेट्स नस्ब होने से मुसाफिरों का इमिग्रेशन में वक्त बचेगा। इब्तिदाई तौर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स नस्ब किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब में हड़ताल खत्म। सिंध समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी और सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करके हड़ताल खत्म करने का मुतालिबा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा, मुल्की माइशत का पहिया रुक गया है, हुकूमत मामले की नज़ाकत को समझे। ट्रांसपोर्टर्स की सिंध समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में हड़ताल पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने शिरकत की। साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान रियाज शाहिद ताजिक, आमिर अली, सलमान अली, आसिफ मलिक शरीक हुए। प्याफ के वाइस चेयरमैन नसरुल्लाह मुगल, राना निसार, असमतुल्लाह नियाजी, बाऊ इरफान भी मौजूद थे। फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी, बाकी सूबों और वफाक की सतह पर मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं, इनका फौरी हल किया जाना चाहिए। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा, बंदरगाहों पर दरामदी और बरामदी सामान रुका हुआ है। सूबों में खाम माल की तरसील को ब्रेक लग चुकी है। रॉ मटेरियल की किल्लत से कारोबारी लागत बढ़ रही है। कंटेनर्स के चार्जेस, एक कंटेनर में डिटेंशन चार्जेस $150 है। आप अंदाजा करें कि अगर वो 10 दिन से पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर कितना डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस लग चुके हुए हैं। तो आगे जो है, हम कंपेटिटर तो पूरी दुनिया में है नहीं, और इस तरह की जो खामखा की जो है वो चीज़ें हमारे पर मुसल्लत हो जाएंगी, इंडस्ट्री पर भी और ट्रेड के ऊपर भी। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान क्या होना है कि आगे इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे डायलॉग करके इस इशू को फौरी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त ऑलरेडी जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ा हुआ है, और इस तरह अगर मज़ीद ये हड़ताल अगर ख़त्म ना हुई तो जो सिचुएशन इस वक्त पोर्ट पे जो मैस क्रिएट हुआ है, जो इनको डैमरेज और डिटेंशन शिपिंग कंपनियां की लगेंगी, उसकी वजह से भी हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, खुराक और दीगर इशिया की तरसील मुतासर है, शदीद बहरान का खदशा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुल्की मईशत का पहिया रुक जाता है। हमारी माशियत चलेगी, हमारा पहिया चलेगा, कारोबार इंडस्ट्री चलेगी, कारोबारी तो फिर ही आगे जो ना मुल्क चलते हैं। तो इस तरह से पूरे इंटरनेशनली भी हमारा इमेज अच्छा नहीं जा रहा, हमारे शिप खाली वापस जा रहे हैं। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? जो मेन वफाक का हमारा इशू है SRO 499 कस्टम का है कि एक कार्टन निकले गाड़ी में से तो वो गाड़ी बंद कर देते हैं। ये पंजाब का भी मसला है, वफाक सिंध का भी मसला है और बलूचिस्तान का भी मसला है, और ये ऑर्डिनेंस वफाक का है। इस पर भी फौरी हल करवाया जाए
ताकि ये मुल्क का पहिया चले। सदर लाहौर चैम्बर ने वफाकी और सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया और कहा बंदरगाहों पर ताजरों को भारी डैमेजेस का सामना है, गैर जरूरी जुर्मानों में नरमी, FIR कल्चर का खात्मा किया जाए, माशी इस्तेहकाम के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती कामों की लाइन लगा दी। गवर्नेंस के मॉडल में सियासी सिफारिश वैल्यू नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामून खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए बड़े इकदाम किए गए हैं। प्राइस कंट्रोल का मौसर निज़ाम कायम करना सरे फहरिस्त है। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा बुखारी ने कहा लिया में मैन होल में बच्चे और बुजुर्ग के गिरने के अफसोसनाक वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने फौरी एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर मीटिंग छोड़कर जाए वक़ुआ पर पहुंचे, ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती कामों की लाइन लगा दी। गवर्नेंस के मॉडल में सियासी सिफारिश वैल्यू नहीं रखती। मंसूबों के मुस्बत नताइज जल्द अवाम के सामने होंगे। जो चीफ मिनिस्टर साहबा के तमाम मंसूबे हैं उसमें उनकी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को कभी वो नीचे नहीं आने देती और ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उनका कोई भी आप मंसूबा उठा के देखें उसमें आपको एक सब स्टैंडर्ड चीज़ कभी नज़र नहीं आएगी। A+ कैटेगरी जिसको आप कह सकते हैं, आप हमेशा वो देखेंगे। मुआविन खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि वजीर आला काश्तकार के नाम से मंसूबे की तजदीद नौ की गई। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जदीद डैशबोर्ड पर हर मंडी का मुकम्मल डेटा और रिकॉर्ड दस्तयाब है। वजीर आला पंजाब का सबसे ज्यादा फोकस आलू, प्याज, टमाटर की कीमत पर होता है। मंडियों में अमले के बॉडी कैम्स के जरिए निगरानी जारी है। 125 तहसीलों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेक्शन कायम कर दिए। अब ऑनलाइन हमें एक एक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की परफॉर्मेंस का पता चल रहा होता है। आज इस डैशबोर्ड पे ये सहूलत भी मौसर है कि अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे टमाटर को ऐड करें और हम ये देखें कि पिछले एक हफ्ते में टमाटर के ऊपर पूरे पंजाब में कितनी चेकिंग हुई, क्या कार्रवाई हुई, कितनी FIR हुई, कितने जुर्माने हुए, कितनी दुकानें सील हुई, तो आज इस डैशबोर्ड पे 1 क्लिक पे अवेलेबल है। पंजाब में जल्द कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप लॉन्च की जा रही है। सारिफीन ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। ये सब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जदीद पंजाब के विजन का अमली मजहर है। कैमरामैन ताहिर जमील के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर हाउसिंग की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद बारे इजलास हुआ। आइंदा मानसून से कबल तमाम अजला में वासा मशीनरी और अफराद क़ुव्वत मुकम्मल करने का हतमी टास्क दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि अवामी शिकायत के तदारुक के लिए जियो टैगिंग तस्वीर लाजिम, ज़बानी जमा खर्च पर काम नहीं चलेगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा पंजाब के इजलास में चेयरमैन वासा पंजाब चौधरी शेर अली, वाइस चेयरमैन वासा लाहौर चौधरी शहबाज और DG वासा तैयब फरीद ने शिरकत की। इजलास में 31 दिसंबर तक वासा पंजाब की मुकम्मल फालियत और दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेर तमाम पोजीशन होल्डर्स की तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब में सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन समेत अरकान असम्बली ने भी खुसूसी शिरकत की। जबकि तकरीब में महकमा सनत, स्किल डेवलपमेंट और मुख्तलिफ कंपनियों के माबैन हुनरमंद ग्रेजुएट्स को रोजगार की फ्राहमी के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। होटल में मुनक्किदा तकरीब में सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चौधरी साकिब चद्दड़, शुएब सिद्दीकी, नादिर चट्ठा, सारा रशीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, पहली बार यहाँ पर हम 1 विंडो ऑपरेशन भी ले आए हैं, कंप्लेन सेंटर ले आए हैं। आप इसकी हालत देखते 2 साल पहले आप समझते कि शायद आप किसी को पुराने कंट्रोल शेड में आ गए और उसको रेनोवेट किया, हमने इसको बेहतर किया। और पहली बार पंजाब टेक्निकल बोर्ड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सारा ये टीम वर्क है, इसमें जो चेयरमैन है, MD हैं पंजाब टेक्निकल बोर्ड और स्किल डेवलपमेंट में नादिर चट्ठा साहब हैं, फिर यहाँ पर चेयरमैन टफ्टा हैं, इन्होंने पिछले 1.5 साल में बड़ी मेहनत की। चेयरमैन पिडमिक मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल, MPA राना मोहम्मद अरशद, सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सैगर ने शिरकत की। आज अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और IT में अगर हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इमर्ज होती हैं। शाफी साहब और पूरी कैबिनेट की जो विजन होगा, इंशाल्लाह हम इसको आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल कैबिनेट देन ये पंजाब असम्बली में आएगा, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह
اچھا بل پاس کر کے آپ کو دیں گے. ہماری انڈسٹری میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے, ہمارے پاس منرلز بہت زیادہ ہیں, اور ٹاپ آف دی لسٹ اگر مجھ سے اگر کوئی پیچھے ہے تو ہمارا پوٹینشیل, ہمارا سب سے زیادہ جو اچھی پروڈکٹ ہے وہ کون سی ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے پاس بیسٹ ہیومن ریسورسز ہیں. تقریب کے اختتام پر فنی تعلیم حاصل کرنے والے گریجویٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے, جبکہ تقریب کے شرکاء کو تعریفی شیلڈز بھی پیش کی گئیں. کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. دی یونیورسٹی آف لاہور میں نچلی سطح پر جمہوریت کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا, جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سیمینار میں طلبہ, فیکلٹی اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پنجاب اسمبلی ملک احمد خان, چیئرمین بورڈ آف گورنرز اویس رؤف, رکن صوبائی اسمبلی احمد اقبال چودھری, سینئر صحافی سہیل ورائچ اور ریکٹر یونیورسٹی آف لاہور پروفیسر محمد اشرف بھی موجود تھے. ملک احمد خان نے نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینے کی تلقین کی. ہماری بریچ آف سوورینٹی, ہماری ٹیریٹری پہ ان کے بلسٹک میزائلز کا اٹیک, اٹ واز لٹرلی, مجھے کسی اور کا تو نہیں پتہ, لیکن جب انہوں نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بات کی تو آئی لٹرلی تھاٹ کہ یار یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ بن گیا. تو آئی ریچڈ آؤٹ ٹو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز. رکن صوبائی اسمبلی احمد اقبال چودھری نے جمہوری نظام پر بات کی. So Lord Ripon gave us this idea of local self-government. Lord Ripon gave us another, ironically because he was a colonial viceroy, اس وقت تک 1882 تک آپ اس ملک میں اپنی لوکل زبان میں کوئی رسالہ یا اخبار شائع نہیں کر سکتے تھے. سہیل ورائچ نے نوجوانوں کے کردار پر بات کی. آج سے 116 سال پہلے اس خطے میں یہ طے ہو گیا کہ اس ملک میں بالآخر منتخب نمائندے حکومت چلائیں گے. یہ 116 سال پہلے طے ہو گیا, اور اظہار رائے کی آزادی سب کچھ ہوگا. تقریب میں طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین نے ملک میں جمہوریت کے فروغ, لوکل گورنمنٹ کے کردار اور نوجوانوں کی سیاسی تربیت پر اظہار خیال کیا. تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی کو اعزازی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42. حمایت اسلام خواتین کالج نیو گارڈن ٹاؤن کے زیر اہتمام ڈگری شو پینٹنگ نمائش منعقد ہوئی. کالج کے طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور فنی مہارتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. حمایت اسلام خواتین کالج نیو گارڈن ٹاؤن کی اس نمائش کا افتتاح صدر انجمن حمایت اسلام اور مہمان خصوصی جسٹس ریٹائر رستم علی ملک نے کیا. اس موقع پر انہوں نے طالبات کے فن پاروں کو سراہا. بچوں کی کاوش ہے اور یہ انہوں نے اپنا جو مافذ ضمیر ہے جو ان کے ذہن میں ہے اس کو کینوس پہ منتقل کیا ہے. یہ ہمارے ٹیچرز کی محنت ہے اور ہمارے انجمن کے جو ممبرز ہیں ان کی محنت ہے. سیکٹری کالج قاضی خبیب امین, سہیل محمود بٹ, الطاف الرحمان, میاں امجد علی, ڈاکٹر فاروق, میاں زاہد جاوید, حکیم عثمان, مصدق اجاز ملک, اجاز حفیظ, عمران قریشی, جوائنٹ سیکرٹری اسد قذافی. کالج پرنسپل بشرا عباس نے بھی اظہار خیال کیا. تمام پینٹنگز کے بارے میں بتایا کہ ان کا بیہائنڈ مائنڈ کیا امیج تھا, اور انہوں نے اپنے امیج کو یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور اس کو یہاں ڈپکٹ کیا ہے. ہمارا ایک انٹرنل تھا جس میں صدر انجمن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا بھی انعام کیا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اور مربع لیبارٹری کے جو چیئرمین ہیں جس بچی نے سب سے اچھی تصویر بنائی اس کے لیے 10,000 کیش پرائز بھی اناؤنس کیا ہے. یہ کسی طور پر بھی کم نہیں تھی, جس میں بچوں کی ایفرٹس نظر آئی ہیں, بچوں کے تھیمز نظر آئے ہیں, ٹیچرز کی ایفرٹس نظر آئی ہیں, ٹیچرز کے تھیم نظر آئے ہیں. طالبات نے اپنی تخلیقات بارے بتایا اور نمائش کو سراہا. میں نے جو اپنا کام کیا وہ میں نے منیچر پینٹنگ کے طور پہ کام کیا ہے, جو کہ میں نے ہارسز کا بانڈ شو کروایا ہیومن کے ساتھ. یہ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے ینگ آرٹسٹ کے لیے کہ وہ اپنا کام ڈسپلے کریں اور اپنے آپ کو ایک آگے لے کے جا سکیں. شرکا کا کہنا تھا طالبات کے لیے ایسے مواقع ان کی تخلیقی کاوشوں کو سراہنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. الحمرا میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی 752ویں برسی پر فکری اور ادبی نشست, ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محمد نواز کوندل کی خصوصی شرکت.
सम्राट सेंटर के हॉल 3 में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की 752वीं बरसी पर फिक्री व अदबी नशिस्त का इख्तिताम किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद नवाज गोंदल की खसूसी शिरकत, नौजवानों और जलालुद्दीन रूमी से शगफ रखने वालों ने शिरकत की। फारसी जुबान व अदब के आलिम डॉक्टर मोइन निजामी ने फिक्र रूमी इल्मी और अदबी फिक्री खिदमात पर गुफ्तगू की। मुतसव्विफीन की किताबें देखें तो उनमें दर फजाइल खामोशी, दर फजाइल सुकूत अबवाब हैं, चैप्टर्स हैं। तो हम जिस अहदे शोर गुल में रहते हैं उसमें फन है खामोश न रहना। तकरीब में रूमी का कलाम भी पेश किया गया। इसी तरह रुबाब सागी है ज़मीन का और अहले दिल का। साजिंदों ने रुबाब और तबले पर रूमी के कलाम को बजाकर समा बांधा। ये कहती है कि मन के अंदर आ और राह पा जा। नौजवानों की बड़ी तादाद ने तकरीब से मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी से आगाही हासिल की। कैमरामैन अली नौमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। आप रहिए सिटी 42 के साथ।